Good morning, student. Today we are discussing class 12 biology and chapter Biotechnology Principle and Process. और इसके पहले जो चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं चैप्टर 1 to 10, ये है यहाँ पर चैप्टर नंबर 11. ओके, और आपको पता भी है जो चैप्टर डिलीटेड हुए हैं उन्हें मैंने आपको बता भी दिया. डिलीटेड चैप्टर क्या थे? चैप्टर नंबर फर्स्ट. इसके अलावा चैप्टर नंबर इवोल्यूशन और चैप्टर नंबर 9. इसके बाद और भी 2 चैप्टर डिलीट हैं, तो इन चैप्टर को आपको इन दिस ईयर स्टडी नहीं करना है 2020-21. और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आप यूट्यूब में जाइए, राइट कीजिए डॉक्टर आशीष सक्सेना, रेड से सब्सक्राइब होगा, उसे क्लिक कीजिए जिससे आपको और भी अपडेट मिलती रहेगी. और नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाते रहिए. जहाँ डाउट है बताइए, हाँ इस टॉपिक में मुझे डाउट है. और हर चैप्टर के मेन टॉपिक ध्यान रखिए. जैसे सपोज एज द चैप्टर नंबर 2, वहाँ पे आपने क्या स्टडी किया? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट. एंड मोनोस्पोरिक मीन्स फंक्शनल मेगास्पोर develop into the female gametophyte. Then in this chapter you are study as the pollination. Pollination are different type: autogamy, geitonogamy and genogamy. Then autogamy include as the 2 type of flower, chasmogamous and clistogamous flower. And cross pollination can occur as the chasmogamous flower, but cross pollination cannot occur as the, बताइए किस में नहीं हो सकता? क्लिस्टोगैमस फ्लावर, because these flower do not open at all. Then in this chapter you are study as the structure of flower, apomixis, polyembryonia and parthenocarpic. Banana, it is the example of parthenocarpic fruits. And the advantage of parthenocarpic fruits: seedless food. Chapter number 3. In this chapter you are study different topic like male reproductive system, female reproductive system, different parts, menstrual cycle, different hormones involved as the menstrual cycle, then spermatogenesis, oogenesis, structure of ovary, then importance of placenta. Chapter number 4, reproductive health. Then include as the amniocentesis. It is a fetal sex determination test based on the amniotic fluid. Then MTP. MTP means medical termination of pregnancy. ART, assisted reproductive technology, include as the different terms: ZIFT, GIFT, ICSI. They are different technique and it is used as the assisted reproductive technology. Then as the chapter 5, principle of inheritance and variation, include as the Mendel's of and Mendel experiment pea plants. And Mendel described different law of dominance, law of segregation and law of independent assortment. Law of dominance and law of segregation combined, it is known as monohybrid. And law of independent assortment, it is known as dihybrid. Mono means the cross between one contrasting trait, and dihybrid means the cross between 2 contrasting traits. Then you know in this chapter as the dominance and recessive. Dominance means character or appear in the presence of recessive. Then homozygous, heterozygous. Homo means similar and hetero means dissimilar. Then as the Mendelian disorder, then chromosomal disorder, and as the pedigree analysis. Then as the one concept as the sickle cell anemia. Sickle cell anemia, it's the disease and it is the example of like as the point mutation. Point mutation means mutation also rising change in the single base pair of DNA, like as the some amino acid change
like glutamic acid change to valine, and suppose there's a low tension of oxygen, then change in the structure of RBC biconcave to sickle like. So this disease, it is known as sickle cell anemia. Then as the hemophilia, symptom of hemophilia, small cut, then non-stop bleeding. Phenylketonuria, then as the it is the effect of poor absorption of kidney. Then mental retardation, then it's this disease, it is caused because change as the amino acid. Okay, then as the different type of chromosomal abnormalities, aneuploidy and polyploidy. Polyploidy observed as plant, and aneuploidy include as the chromosome number gain and loss, like as different syndrome disease, Klinefelter syndrome, Down syndrome, Turner syndrome. So these different topics study chapter number 5th. Then one concept as the heterogametes. Hetero means different type of gametes, and male heterogametes and female heterogametes. Male heterogametes observe human being, and female heterogametes observe as birds, like as the female birds present ZW type of chromosome. Okay. Then as the T.H. Morgan experiment Drosophila, and Drosophila scientific name fruit fly. And why T.H. Morgan experiment Drosophila? Because it's the different region. Single mating produce large number of progeny, and then these fruit fly easily grown in the simple synthetic medium, then easily sexy differentiation. Okay. Then as a recombination, then linkage, and chromosomal theory of inheritance described as the Walter Sutton and Theodore Boveri. Then after that chapter number 6, molecular basis of inheritance. That starting how we are determine length of DNA. So we are determine length of DNA on the basis of number of base pair, and base pair represent as the nucleotide. The different type of nitrogen base, adenine, guanine, thymine, cytosine. Then as the uracil. Uracil absent DNA, but uracil present RNA. Then center dogma include as the replication, transcription, translation. The molecular information DNA to RNA, RNA to the protein. Different concept prove that DNA is genetic material, like as the transforming Griffith. Then as the bacteriophage include as the Hershey Chase. Then as the semi-conservative mode of replication, experimenter prove that, like as the E. coli, Messelson and Strahl, he is proved that DNA replication is semi-conservative. And what is mean by semi-conservative? It means the parental combination means as the character are half in the new generation. Then as the Watson and Crick, he is described that DNA is the semi-conservative mode of replication, and experimenter proved that Messels and Strahl. Then transcriptional process in prokaryotic, then eukaryotic, same condition, translation, prokaryotic, eukaryotic. That process complete initiation, elongation, and last termination. Origin of replication for enzyme machinery, then different enzyme, DNA dependent DNA polymerase, and RNA dependent RNA polymerase. Then as the function of RNA polymerase first, second and third. DNA fingerprinting, HGP, Human Genome Project. Then DNA fingerprinting, it is based on the VNTR, variable number of tandem repeats. Then it based as the polymorphism. Polymorphism means variation at genetic level. The next chapter is the disease. Disease include as the different type of disease like bacteria, viruses, protozoa, fungi, worm. Then as a symptom causes, then cancer. Then after that AIDS, different drugs, then alcohol. तो यहाँ तक ये टॉपिक आप सब स्टडी कर चुके हैं. ओके, मेरा मेन ओनली टॉपिक मैंने बताया आप लोगों को.
कहीं भी किसी भी टॉपिक में आपको डाउट है बताइए किस टॉपिक पे डाउट हो रहा है और ग्रुप में सेंड कीजिए और थोड़ा एक्टिव रहिए, क्योंकि ये आपका सितंबर आज 22 सितंबर कंप्लीट हो गया। आप अपने टाइप के यूज़ करते रहिए, ये नहीं कि लॉकडाउन है कि हमें ना कॉपी बनानी ना कुछ करना है। वर्क कीजिए, वर्क करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ एडवांटेज आपको मिलेगा। आगे आपका एग्ज़ाम भी है कि आपके बोर्ड फॉर्म फिलअप हो रहे हैं। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर नंबर 11 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। अब यहाँ पे एक पॉइंट आया, बायोटेक्नोलॉजी क्या है। कॉपी और पेन भी अपने पास रखिए और उसे राइट भी करते जाइए। ओके, बायोटेक्नोलॉजी क्या, बायोटेक्नोलॉजी डील्स विथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके अकॉर्डिंग क्या आते हैं, हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स और एनिमल सेल, तीनों बार है। फर्स्ट क्या, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एनिमल सेल, देयर एंजाइम टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट एंड प्रोसेस यूजफुल टू ह्यूमन। मीन इनसे जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं, दीज प्रोडक्ट आर यूजफुल एज द ह्यूमन बीइंग। तो एज द बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड एज द बी स्टडी एज द प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इनसे हम क्या ऑब्टेन कर रहे हैं, प्रोडक्ट, और जनरेट दीज प्रोडक्ट यूजफुल एज द, किसके लिए यूजफुल है, ह्यूमन बीइंग। अब यहाँ पे आया है बायोटेक्नोलॉजी टर्म किसने दिया, तो बायोटेक्नोलॉजी टर्म वाज गिवन बाय कार्ल इरिकी। इसको मैं राइट की दे रहा हूँ, इरिकी। इसको आप लोग राइट कर सकते हैं। तो दिस साइंटिस्ट डिस्क्राइब द टर्म बायोटेक्नोलॉजी, कार्ल इरिकी। अब यहाँ पे पॉइंट आ रहा है EFV, अकॉर्डिंग टू, किसके अकॉर्डिंग, EFV। और EFV क्या होता, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ओके, E से क्या, यूरोपियन, F से क्या, फेडरेशन, और V से क्या, बायोटेक्नोलॉजी। इनके अकॉर्डिंग बायोटेक्नोलॉजी इज द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, इसे हम क्या बोलते हैं, नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म सेल पार्ट्स देन मॉलिकुलर एनालॉगस फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विस, जिसके अकॉर्डिंग हम क्या डिफरेंट प्रोडक्ट की स्टडी करते हैं। अब यहाँ पे आता प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी किस प्रिंसिपल्स पे डिपेंड है, द न्यू हेडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ओके, तो टॉपिक क्या, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी टू प्रिंसिपल पे डिपेंड है। फर्स्ट, जेनेटिक, तो फर्स्ट पॉइंट है जेनेटिक इंजीनियरिंग। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। और सेकेंड पॉइंट क्या जाएगा बताइए, स्टेरिलाइजेशन मेथड। मेथड, सो बायोटेक्नोलॉजी इट इज बेस्ड एज द टू टाइप ऑफ टेक्निक। फर्स्ट पॉइंट क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, और सेकेंड पॉइंट क्या है, स्टेरिलाइजेशन मेथड। तो फर्स्ट जो हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी, जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो एज द मॉडिफिकेशन ऑफ केमिकल नेचर ऑफ द DNA एंड RNA, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, DNA और RNA का क्या हो रहा है यहाँ पे, केमिकल मॉडिफिकेशन एंड देयर इंट्रोडक्शन इनटू अनदर होस्ट ऑर्गेनिज्म। मीन्स इनको हम इंट्रोड्यूस कहाँ पे कर रहे हैं, होस्ट मीन्स दूसरी बॉडी, होस्ट ऑर्गेनिज्म टू चेंज द फिनोटाइपिक कैरेक्टर ऑफ द होस्ट। मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं यदि हमें होस्ट बॉडी का फिनोटाइपिक कैरेक्टर चेंज करना है, मतलब उसका एक्सटर्नल फीचर चेंज करना है, तो वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। ओके, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग इन दिस टेक्निक बी ए चेंज एज द फिनोटाइपिक कैरेक्टर एज द होस्ट बॉडी। क्या चेंज कर रहा है, फिनोटाइपिक कैरेक्टर। अब यहाँ पे आता है स्टेरिलाइजेशन मेथड।
to maintain growth and manipulation of only the desirable microbes or cell in large quantity for the manufacture of biotechnological product like antibodies, vaccine, enzyme। 3 पॉइंट यहाँ पे आ रहे हैं। फर्स्ट क्या आ रहा है? एंटीबॉडीज। सेकेंड क्या आ रहा? वैक्सीन। थर्ड क्या आ रहा है? एंजाइम्स। देन द बेसिक स्टेप इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब यहाँ पे आ रहा है जेनेटिक इंजीनियरिंग के बेसिक स्टेप कौन कौन से हैं। फर्स्ट पॉइंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विथ डिजायरेबल जीन। पहले हमें क्या आइडेंटिफाई करना? आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए। डीएनए में कौन सा जीन क्या डिजायरेबल। सेकेंड पॉइंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डीएनए इनटू द होस्ट टू फॉर्म रिकॉम्बिनेंट डीएनए। डीएनए को हम क्या कर रहे हैं? इंट्रोडक्शन ऑफ द डीएनए इनटू द होस्ट। डीएनए को कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है? होस्ट बॉडी में, टू फॉर्म रिकॉम्बिनेंट डीएनए। नेक्स्ट, मेंटेनेंस ऑफ डीएनए इन होस्ट एंड जीन क्लोनिंग। क्या हो रही प्रोसेस? जीन क्लोनिंग। और लास्ट आ जाए जीन ट्रांसफ़र। ओके, अब यहाँ पे आता है इन 1972 साइंटिस्ट का नाम क्या है? स्टैनली कोहन एंड हर्बर्ट बोयर। ध्यान रखिए, क्या नाम है? स्टैनली कोहेन और दूसरा क्या? हर्बर्ट बोयर। इन्होंने क्या कंस्ट्रक्ट किया? फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इन साइंटिस्ट के नाम आप लोग राइट कर लीजिए। फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए, तो साइंटिस्ट का नाम ध्यान रखिए आप, स्टैनली ओके कोहेन, स्टैनली कोहेन। और सेकेंड है हर्बर्ट हर्बर्ट बोयर। तो इन्होंने डिस्क्राइब क्या किया, क्या बताया रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बारे में। ओके, देन हर्बर्ट बोयर वर्क ऑन द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। और हर्बर्ट बोयर ने वर्क किस पे किया? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ऑफ ई कोलाई। किसने किया बताइए? अभी नाम बताया था मैंने, हर्बर्ट बोयर। तो इन्होंने वर्क किस पे किया? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्ट कर रहा, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ऑफ ई कोलाई। ई कोलाई क्या होता? बैक्टीरिया विच कट डीएनए इन पर्टिकुलर फैशन एंड प्रोड्यूस स्ट्रैकेंड्स और बोथ द स्ट्रैंड। These restricted were ligated with the desirable pieces of DNA. Ligate means यहाँ पे यदि एंजाइम को हमें ज्वाइन करना तो with the help of ligase. Okay. Then Stanley Cohen study प्लाज्मिड DNA। इन्होंने किसके बारे में स्टडी किया? कोहेन साहब ने जो स्टडी किया प्लाज्मिड DNA। प्लाज्मिड क्या होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर क्रोमोसोम। ओके, तो एज अ स्टैनली कोहेन स्टडी प्लाज्मिड डीएनए फ्लोटिंग फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया सेल। मीन्स क्या होता है? जो डीएनए होता है, प्लाज्मिड डीएनए कहाँ पाया जा रहा है? फ्लोटिंग इन द साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया सेल। ही आल्सो डेवलप ए मेथड ऑफ रिमूविंग प्लाज्मिड फ्रॉम द सेल। ओके, री इंसर्टिंग दैम इनटू द अदर सेल। मतलब यहाँ पे क्या है? प्लाज्मिड को इन्होंने एक सेल से अलग किया और इसे इंसर्ट कर दिया अनदर सेल में। दे आइसोलेटेड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन फ्रॉम प्लाज्मिड ऑफ बैक्टीरिया, दैट लिंक द जीन विद प्लाज्मिड एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू ई कोलाई। इनकॉर्पोरेट कहाँ पे किया? ई कोलाई पे, वेयर इट कुड रेप्लिकेट यूजिंग द न्यू होस्ट डीएनए। पॉलीमरेज एंजाइम मेक मल्टीपल कॉपी। यहाँ पे एक एंजाइम आता पॉलीमरेज, नाम है पॉलीमरेज। ओके, तो पॉली मीन्स क्या हो? ज़्यादा। और जब पॉली मीन्स ज़्यादा हुआ तो यहाँ पे हम क्या ऑब्टेन कर सकते हैं? ज़्यादा कॉपी। ओके, तो दीज एंजाइम एज द मेक एज द मोर कॉपी।
देन स्टेप कैरीड इन द कंस्ट्रक्शन फ्री रिकॉम्बिनेंट या फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। कौन कौन से स्टेप आते हैं? तो अपने डाउट बताते जाइए कि हाँ यहाँ पे कुछ डाउट हो रहा है। जीन इनकोडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट इन द नेटिव प्लाज्मिड ऑफ सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। क्या नाम है? सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। एंड आइडेंटिफाई प्लाज्मिड इज एन ऑटोनोमस रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड इज एन ऑटोनोमस, क्या बोलेंगे? ऑटोनोमस रेप्लिकेटिंग। ये क्या कर रहा है? रेप्लिकेटिंग एन एक्स्ट्रा सर्कुलर क्रोमोसोम। तो प्लाज्मिड इट इज ऑटोनोमस रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। देन द डिजायर्ड डीएनए वाज कट एट अ स्पेसिफिक लोकेशन बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या कर रहा है? जो डिजायरेबल डीएनए है उसे कट कर दिया एंड द कट डीएनए वाज लिंक टू द प्लाज्मिड डीएनए। और वापस से अटैच कहाँ पे कर दिया? प्लाज्मिड डीएनए एंड ट्रांसफर टू ई कोलाई फॉर जीन मल्टीप्लिकेशन। किस लिए? क्या? जीन मल्टीप्लिकेशन के लिए। ओके, तो रेस्ट्रिक्शन का ध्यान रखिए, इसका वर्क किया जाता है कट करने में, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब यहाँ पे आता है टूल्स फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसके कौन कौन से टूल्स हैं और किसके टूल्स बता रहे? रिकॉम्बिनेंट। देन न्यू टॉपिक, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट। ओके, तो बात किसकी हो रही है? टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। हाँ भाई, यहाँ पे हमें कौन कौन से टूल्स की रिक्वायरमेंट है? ठीक है, किसी कटिंग करना है, कुछ भी करना, तो यहाँ कौन कौन से टूल रिक्वायर्ड होते हैं? तो फर्स्ट पॉइंट है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। कौन सा एंजाइम? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। सेकेंड क्या आ जाएगा? पॉलीमरेज एंजाइम। पॉलीमरेज एंजाइम। ओके, देन क्या आ जाएगा? लाइगेज। ए ज्वाइनिंग करता है। रेस्ट्रिक्शन, पॉलीमरेज, लाइगेज, देन एज द वेक्टर। वेक्टर भी चाहिए यहाँ पे। और लास्ट किया जाएगा होस्ट ऑर्गेनिज्म। जिस बॉडी से में होस्ट ऑर्गेनिज्म या ऑब्लिक सेल। सो दीज टूल्स आर रिक्वायर्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये सभी टूल्स आपके रिक्वायर्ड हो रहे हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। फर्स्ट क्या? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, कट द डीएनए, पॉलीमरेज, ज़्यादा कॉपी ऑब्टेन करना, लाइगेज, ज्वाइनिंग करना, वेक्टर, जहाँ पे कोई चीज़ के अटैच होते हैं, और होस्ट ऑर्गेनिज्म, जहाँ से हमें कोई चीज़ किसी वेक्टर को अलग करना है, तो वहाँ से कहाँ से करते हैं? होस्ट बॉडी से। ओके, अब यहाँ पे आता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। वन बाय वन हर टूल को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहला टूल इसमें आया, कौन सा आ जाएगा बताइए? फर्स्ट टूल इसमें आ जाएगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्या नाम है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर सीजर। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं मॉलिक्यूलर सीजर किसे बोलते हैं? तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इट इज़ नॉन एज मॉलिक्यूलर सीजर। क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर। ध्यान रखिए इसे। ओके, तो एज द दीज एंजाइम इट इज़ नॉन एज मॉलिक्यूलर सीजर्स एंड रिस्पॉन्सिव फॉर द कटिंग डीएनए। किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होता? कटिंग डीएनए। डीएनए को हमें कट करना है,
ओके, डीएनए को हम क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। देन दे आर प्रेजेंट इन बैक्टीरिया टू प्रोवाइड अ टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म का रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम। एक आप दे आर प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, ये किससे प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया, टू प्रोवाइड अ टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। ये किसमें हेल्प कर रहा, डिफेंस मैकेनिज्म। द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस हिंड, और जो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस है इसका नाम क्या है, हिंड, हिंद, HIND, हिंद सेकेंड, आपके स्कूल के नाम से आपको याद रहेगा। तो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, क्या नाम है यहाँ पे, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। दो कंडीशन होती है, एक होता है एक्सोन्यूक्लियस और एक होता है इंडोन्यूक्लियस। यहाँ पे बात हो रही है इंडोन्यूक्लियस की, ध्यान रखिए, किसकी बात हो रही है, इंडोन्यूक्लियस। तो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस बाय हिंद सेकेंड, क्या नाम है, हिंद सेकेंड, वाज आइसोलेटेड बाय स्मिथ, विल्कन्स और कैली। इन तीनों साइंटिस्टों ने से आइसोलेट किया। किससे आइसोलेट किया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया, ध्यान रखिए, बैक्टीरिया का नाम क्या, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया। दैट इट वाज यूज्ड टू कट डीएनए मॉलिक्यूल्स एट अ पर्टिकुलर पॉइंट बाय रिकॉग्नाइजिंग ए स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर नॉन एज रिकॉग्निशन सीक्वेंस। 6 बेस पेयर, और 6 बेस पेयर को क्या बोलेंगे हम, रिकॉग्निशन सीक्वेंस। क्या बोलेंगे, रिकॉग्निशन सीक्वेंस बोला जाएगा। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए, क्या बताया मैंने, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, एंड दिस एंजाइम इज नॉन एज मॉलिकुलर सीजर। इस एंजाइम को हम क्या बोलते हैं, मॉलिकुलर सीजर। किस एंजाइम को बोलेंगे, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। और यहाँ पे इसका जो इसके अकॉर्डिंग क्या था, द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस हिंद सेकेंड। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिए। सपोज बोल दिया उन्होंने फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम का नाम बताइए, तो आप बता सकते हैं हिंद सेकेंड। इसका वर्क क्या होता है, कट द डीएनए, डीएनए को क्या करना, कट करना। तो इट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस एंजाइम, कट द डीएनए। ओके, और बाकी जो टॉपिक है बताते रहिए। हाँ, इन टॉपिक में मुझे डाउट है, तो यहाँ आपके चैप्टर 1 से 10 तक टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं, और फिर भी यदि कोई टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा, टॉपिक सेंड कर दीजिए, तो उसके हम अलग से छोटी क्लिप वीडियो बना देंगे। ओके, और नोट्स प्रॉपर बनाइए और टॉपिक अपने कंटिन्यू याद मतलब रिवाइज करते रहिए। अब यहाँ पे क्वाड्रा नेमिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, नाम कैसे दिया इसका, द फर्स्ट लेटर इज डिराइव फ्रॉम द जीनस नेम, नेक्स्ट टू लेटर फ्रॉम द स्पीसीज नेम ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल फ्रॉम वेयर द एंजाइम आर एक्सट्रैक्टेड। एंजाइम कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया, प्रोकैरियोटिक सेल। द रोमन नंबर फॉलोइंग द नेम एंड सो द ऑर्डर इन विच द एंजाइम वर आइसोलेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया स्ट्रेन। ध्यान रखिए, एंजाइम को हमने आइसोलेट कहाँ से किया, एंजाइम वर आइसोलेटेड एज द बैक्टीरिया स्ट्रेन। तो यहाँ पे इस एंजाइम को हमने आइसोलेट किया, ब्लड से निकाला, वहाँ से कहाँ से, बैक्टीरिया स्ट्रेन। देन फॉर एग्जाम्पल ई कोलाई, बैक्टीरिया नाम क्या, ई कोली इज ड्राइव फ्रॉम द एस्केरिशिया कोली। ओके, देन R/13 हिंद सेकेंड फ्रॉम हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा RD। नेक्स्ट क्या बताया, बैम H1, क्या नाम बताया, बैम H1, ध्यान रखिए, BAM, बैम H1। तो एज द बैम H1 फ्रॉम द, बैम से क्या होगा, बैसिलस एमाइलो क्यूफिसेंस। देन एज द E. coli सेकेंड फॉर्म E. coli R245 etc। तो
तो जनरली इनको हम आइसोलेट कहाँ से कर रहे हैं, बैक्टीरिया से। देन इसमें क्या दिया, रेस्ट्रिक्शन जाइम बिलोंग टू द क्लास। रेस्ट्रिक्शन किस क्लास में आ रहे हैं, तो इट इज़ बिलोंग टू द क्लास न्यूक्लियस। इसको आप ध्यान रखिए, इसकी क्लास का नाम क्या है, न्यूक्लियस। तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिए, रेस्ट्रिक्शन जाइम इट इज़ बिलोंग टू द क्लास न्यूक्लियस। देन इसके अकॉर्डिंग क्या है, एक्सो न्यूक्लियस, और सेकेंड क्या है, इंडो। एक्सो मीन्स क्या होता है, एग्जिट, आउटसाइड। इंडो मीन्स क्या होता है, इनसाइड। तो एक्सो न्यूक्लियस कट डीएनए एट द एंड। इसका मतलब क्या है, दो पॉइंट है, एक्सो इंडो। तो एक्सो क्या कर रहा है, डीएनए को क्या कर रहा है, कट कर रहा। तो यहाँ पे आप राइट भी कर सकते हैं, कट डीएनए एट द एंड। डीएनए को कट करा कहाँ पे, लास्ट साइड में, और लास्ट है इंडो, कट एट अ स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए। डीएनए को एक स्पेसिफिक पोजीशन में कट कर रहा इंडो न्यूक्लियस। तो दो कॉन्सेप्ट है, एक्सो एंड इंडो। एक्सो कहाँ पे करा, एट द एंड ऑफ डीएनए, जबकि इंडो कहाँ पे करा, कट द डीएनए या कट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए। डीएनए को स्पेसिफिक पोजीशन में कट कर रहा। देन एज द पॉइंट क्या रहा, पैलिंड्रोमिक, द रिकॉग्निशन सीक्वेंस ऑफ इंडोन्यूक्लियस। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, इंडोन्यूक्लियस आर पैलिंड्रोमिक। द सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर रीड द सेम ऑन बोथ द डीएनए स्ट्रैंड वेयर द ऑर्डिनेशन ऑफ रीडिंग इज केप्ट सेम। मतलब जो ऑर्डिनेशन है वो क्या रहा, सेम आ रहा। आप राइट साइड से रीड कीजिए, लेफ्ट साइड से। एक सिंपल सा एग्जाम्पल, मलयालम। मलयालम को आप कहीं से रीड कीजिए, इसका नेम क्या सेम आएगा। या एक बेस पेयर हमें आप बता दे रहे हैं, सपोज यहाँ पे है GAA, ग्वानिन, एडनिन, एडनिन, थाइमिन, थाइमिन, साइटोसिन। यहाँ पे आपने राइट कर दिया 5 एंड, यहाँ पे राइट कर दिया 3 एंड। इसका उल्टा कर दीजिए, 3 इंटू 5 एंड। यहाँ क्या आ जाए, C, यहाँ TT, यहाँ पे क्या AA, यहाँ पे क्या G। ओके, यही आएगा। तो ये एग्जाम्पल क्या है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का। तो यहाँ तक आप लोग देख लीजिए। कल हम आपको बताएं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ इंडोन्यूक्लियस, और जहाँ भी डाउट है बताते रहिए, हाँ इस टॉपिक में मुझे डाउट है, तो वो टॉपिक फिर से हम क्लियर कर देंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।